बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 1 करते हैं जो कि आपका अप्रैल से नया सेशन शुरू हो रहा है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर द न्यू सेशन। और जो वर्कशीट आपकी आई है फर्स्ट वाली, उसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस इन इंग्लिश एंड देन हिंदी। Nutrition in plants means everybody require food for getting energy, so plants also require food for getting energy, and from where they get energy, that is the process is called nutrition. So nutrition, what is the nutrition? Before this, some plants are only the organisms which prepare their own food by using water, carbon dioxide and minerals. These are the raw materials to prepare food by the plants. Now what is the nutrition? The process of taking food by the organism and its utilization by the body is called nutrition. Every living organism require food, and what the food contain? These contain nutrients. And what are the nutrients? Carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals are the components of the food, and these are called nutrients. So you can write the definition of nutrients, you can write the definition of nutritions. Nutrition and nutrients are the different one. Nutrients are the part of the food and nutrition is the process of taking food. So you have to differentiate between these two terms, and there are the two types of nutritions. One is autotrophic, other is heterotrophic. Autotrophic nutritions are those mode of nutritions in which the organisms make their own food from the simple substances is called autotrophic nutritions. And example इसमें आते हैं plants. Plants are the called autotrophs. Other is mode of nutrition is heterotrophic nutrition. The mode of nutrition in which organisms take in ready-made food prepared by the plants, that are called heterotrophic nutrition. For example, the tiger, the sheep, the buffalo, cow and the different animals and the different birds, they depend upon autotrophs for their food. So they are called heterotrophic, and the mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. Now there are the few questions that you can write in your copies. First question is, what are the raw materials used by the plants to prepare food? So there is the raw material in this paragraph, you have to search out. Second is, what is nutrition? Now the definition of nutrition is also written here, you can identify from the paragraph. Third, write two examples of autotrophs. Here is in this paragraph you can find out. And the fourth question is, write the two examples of heterotrophs. So two examples of heterotrophs are also there, you can write from this paragraph. So this is the worksheet for the English medium students. Now we will discuss about the Hindi medium students. फर्स्ट वन इज़ पादपों में पोषण. जो फर्स्ट वर्कशीट आपकी उसका नाम है पादपों में पोषण. पोषण मतलब भोजन लेना. भोजन किस लिए लेते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए. तो केवल पादप ही संसार में ऐसे जीव होते हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की कच्ची सामग्री है. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से है कि पौधे के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी चाहिए, तो आप इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये वाला. सेकेंड है, पोषण क्या है? किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसका उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं, और सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है. एक होता है पोषक, एक होता है पोषण. दोनों शब्दों में आप डिफ्रेंशिएट करना ना भूलें. पोषक और पोषण क्या है? पोषण एक विधि है जिसमें कोई भी जीव भोजन खाता है. जैसे हम लोग अपना खाना खाते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, तो हम पोषण कर रहे हैं, लेकिन उस फूड के अंदर क्या तत्व हैं? आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया या विटामिन खाया, खनिज लिया आपने, तो क्या चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट थी, उसको हम पोषक कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जो किसी भी तरह हमें बीमारियों से बचाते हैं. उसके बाद पोषण दो तरह के होते हैं. फर्स्ट है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी पोषण. स्वपोषी पोषण की ये डेफिनेशन है यहाँ पर कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं. जैसे पादप है, सारे पे पौधे हैं जितने भी, सारे स्वपोषी पोषण है. दूसरा है विषमपोषी पोषण, वो विधि जिसमें जीव पदार्थ पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं. और विषमपोषी जीव होते हैं, जैसे जंतु या अधिकतर जितने भी जीव हैं सारे के सारे विषमपोषी हैं, मतलब वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, वो स्वपोषी के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें साथ साथ वर्कशीट में, तो वो क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री, मैंने पहले बताया था आपको. ये पोषण किसे कहते हैं? दिस इज़ द डेफिनेशन. स्वपोषी के दो उदाहरण, तो स्वपोषी यहाँ पर है, इसके कोई दो पौधों के नाम लिख सकते हैं. विषमपोषी के दो उदाहरण, तो विषमपोषी यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है आपको, इनके ही नाम लिख दें, या अपने आसपास जो भी, हम ह्यूमन बीइंग भी विषमपोषी में आते हैं क्योंकि हम अपना खाना स्वयं नहीं बनाते. ये नहीं कि हम किचन में जाते हैं तो अपना खाना स्वयं बना रहे हैं. खाना बनाने का मतलब जो नेचुरल तरीके से खाना बनता है,
फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हम मार्केट से बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, हम उसको बनाते नहीं हैं, इसलिए हम विषम पोषी कैटेगरी के अंदर आते हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आएगी एंड डू दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। डेफिनेटली you will learn a lot by doing. Thank you so much.